Assalamu alaikum. New Oxford Social Studies for Pakistan, Class 5. I hope you all are good. Today we are going to start our new lesson, lesson number 20, from chapter number 8, Pakistan and her neighbors. Dear students, today our main topics are first one is location of Pakistan, second, neighbors of Pakistan. In this, we will discuss four states Iran, Afghanistan, China, and India. Next topic is interdependence. Learning outcomes. You can define the location of Pakistan. You can tell about the neighboring countries of Pakistan. You can explain the Pakistan's relation with Muslim countries and you can define the interdependence. Our first topic is location of Pakistan. Pakistan is located in the South Asia. It lies between the latitude 24° north and 27 north and between longitude 61 east and 76° east. It covers an area of about 7,96,095 square kilometers. Pakistan's neighbors. Pakistan is bordered by India on the east, the Arabian Sea on the south, Iran on the southwest, and Afghanistan on the northwest. In the northeast, there is a China. In the west, Pakistan is bounded by 800 kilometers of desert along the Iranian border. इसके साथ साथ अफगानिस्तान के साथ हमारा 2200 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो अटैच होता है और अगर साउथ की बात करें तो 800 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन जो है हमारी साउथ के अंदर आती है यानी यूं भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान शेयर्स बॉर्डर्स विद 4 कंट्रीज और नेबर जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं मकसद ये होता है कि उनके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है तो जिस तरह हमारा ईरान के साथ रिलेशनशिप अच्छा है चाइना के साथ रिलेशनशिप अच्छा है लेकिन वहाँ हमारा इंडिया और अफगानिस्तान जो है उसके साथ रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए Dear students, our first neighbor state is Iran. Iran, also called Persia and officially the Islamic Republic of Iran. It is a country in Western Asia. It is bordered to the northwest by Armenia and Azerbaijan, to the north by the Caspian Sea, to the northeast by Turkmenistan, to the east by Afghanistan and Pakistan, to the south by the Persian Gulf and Gulf of Oman, and to the west by Turkey and Iraq. Let's see some important points about Iran. Like Iran is a country of deserts and plateaus and surrounded by the mountains. यानी वहाँ पर डेजर्ट्स भी मौजूद हैं प्लेट्यूज भी हैं उसके अलावा माउंटेन से ये स्टेट जो है वो घिरी हुई है प्लस इसके साथ साथ उसके नॉर्थ पे कोस्टल लाइन जो है वो मौजूद है अलोंग द कैस्पियन सी और गल्फ जो है वो मौजूद है साउथ में this waterway was once known as the Persian Gulf. और नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो ये एरिया मौजूद है वहाँ पे रेनफॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है दैट्स वाई वहाँ की लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और इसी वजह से वहाँ के लोगों का जो पेशा है या कह सकते हैं कि ईरान इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट प्लस वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें पर्शियंस तर्क कुर्द आर्मीनियंस एंड अरब के जो लोग हैं वो शामिल हैं Iran has 10% of world's oil reserves and also natural gas प्लस इसके अलावा जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद हैं उनमें कॉपर आयरन और लेड और प्रेशियस स्टोन्स वगैरह जो हैं वहाँ से जो हैं फाइंड आउट किए गए हैं यानी ईरान जो है कुदरती वसाइल से माला माल है
प्लस इसके अलावा ईरान जो है अपने जो पर्शियन कारपेट्स हैं उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके अलावा ईरान की जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। Iran was ruled by different dynasties. In more recent years, it had a ruler called the Shah, whose name was Raza Pahlavi. In the 1970s, various groups united under the exiled leader Ayatollah प्लस इसके बाद 1979 के अंदर जो है यहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है वो आया। आयातुल्ला की हुकूमत जब आई, उसने जब हुकूमत का कंट्रोल संभाला तो एक इस्लामिक रेवोल्यूशन, एक इस्लामिक इनकलाब जो है इस स्टेट के अंदर आया। प्लस जो लैंग्वेज बोली जाती है ईरान के अंदर, या कहा जा सकता है द लैंग्वेज ऑफ ईरान इज पर्शियन और फारसी। And today there are about 70.5 million people in Iran. The capital is called Tehran. Our next neighboring country is Afghanistan. Afghanistan, officially the Islamic Republic of Afghanistan, is a landlocked country at the crossroads of Central and South Asia. Afghanistan is bordered by Pakistan to the east and south, Iran to the west, Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan to the north, and China to the northeast. Dear students, some main points about Afghanistan are like Afghanistan is a mountainous country. It has a cold winters plus summer season is hot and dry और जो पॉपुलेशन है वो मिक्सड अप है। डिफरेंट ग्रुप्स उसके अंदर शामिल है जैसे पश्तून्स हैं, उज़्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं। प्लस जितने भी मेजर रूट्स हैं मिडल ईस्ट से सब कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के लिए वो अफगानिस्तान के रास्ते से गुजरती हैं। प्लस इसके अलावा जो 30th सेंचुरी है उसके अंदर अफगानिस्तान जो है एक बहुत बड़ी अम्पायर के तौर पे सामने आई और उस टाइम वहाँ के जो रूलर थे उनका नाम मंगोल, वो रूलर मंगोल फैमिली से थे और उनका नाम चंगेज खान था। इन 1979 में जो रशिया है उसने अटैक किया अफगानिस्तान पे और उसे ऑक्यूपाइड कर लिया। उसके बाद 1989 के अंदर जो है उसने अपनी फौज जो है उसको वापस निकाला। 1970 के अंदर यहाँ पे नेचुरल गैस जो है उसे फाइंड आउट किया गया और 2001 के अंदर दोबारा से अफगान जो है उस पे अमेरिकन फोर्सेस जो है या नेटो फोर्सेस जो है उन्होंने उसको ऑक्यूपाइड कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। और जब अमेरिका ने अटैक किया उसके बाद 2002 के अंदर वहां पे न्यू गवर्नमेंट जो है उसे गवर्नमेंट जो थी उसको सेटअप किया गया और इस दौरान द कंट्री हैज सफर्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज और many Afghans left the country because of fighting in the 1980s and again after 2001 और 100,000 के करीब जो रेफ्यूजीज थे जो वो पाकिस्तान के अंदर आए। लेकिन रशिया के अटैक से पहले जो अफगानिस्तान की सिचुएशन थी उसकी प्रोग्रेस थी कंट्री की, या कह लें कि अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा खुशहाल था। स्कूल और यूनिवर्सिटीज जो थे वो प्रॉपर वर्किंग में थे। अफगानिस्तान बेसिकली ड्राई फ्रूट्स जो है और ड्राई फ्रूट से माला माल है। उसके साथ साथ जो लैम्प स्किन होती है, फ्रूट्स होते हैं, कॉटन, वूल, कारपेट वगैरह, प्लस नेचुरल गैस जो है उसको एक्सपोर्ट करता है क्योंकि नेचुरल गैस जो है उससे जो है बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला जो है अफगानिस्तान कमाता है। प्लस द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान इज़ पश्तो प्लस पर्शियन जो है वो भी यूज की जाती है, दाढ़ी पर्शियन जिसे कहा जाता है वो लैंग्वेज भी यूज की जाती है। और अब जो अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 32 मिलियन के करीब है और कैपिटल सिटी जो है अफगानिस्तान की वो काबुल है। Our next neighboring state is China. China, officially the People's Republic of China, is a country in the East Asia. It is the world's most populous country with a population of around 1.34 billion, covering approximately 9.6 million square kilometers. It is the world's third largest country by area.
Some main points about China like जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, बट पाकिस्तान शेयर्स ओनली अ स्मॉल बॉर्डर विद चाइना। इसके अलावा एक माउंटेनियस रेंज है जो हम दोनों के दरमियान आती है, वो है कराकोरम रेंज। और कराकोरम रेंज के ऊपर एक हाईवे बनाया गया था जिसे कराकोरम हाईवे कहा जाता है, और ये एक हाईवे जो है 1978 के अंदर जो है इसको ओपन किया गया बनाने के बाद। प्लस इसके साथ वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट है, प्लस एग्रीकल्चरल स्टेट और नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और कल्चरली वो स्टेट जो कल्चरली चाइना जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पे कल्चरल रेवोल्यूशन जो है वो 1960 के अंदर आया। वर्ल्ड्स फोर्थ इकोनॉमी जो है वो चाइना की है, और बिगेस्ट सिटी जो है चाइना की वो बीजिंग है। चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न स्टेट है। हालांकि उसके पास वो अपनी जो कल्चरल वैल्यूज है उनको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, बट उसके साथ साथ उन्होंने अपनी स्टेट के ऊपर टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। Our next neighboring country is India. India, officially the Republic of India. India is a country in the South Asia. It is the second most populous country, the seventh largest country by land area, and the most populous democracy in the world. Some main points about India. India is much larger than Pakistan. इसका एरिया जो है तकरीबन 29,73,190 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है, और पॉपुलेशन 1.3 बिलियन के करीब है। बहुत से रिलीजियस वहाँ पे मौजूद है, लेकिन हिंदू जो है वो मेजोरिटी पे मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम, सिख्स, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियनिटी जो है वहाँ पे लार्ज नंबर पे मौजूद है। इसके अलावा इंडिया जो वो एग्रीकल्चरल स्टेट है, और लार्ज प्लेट्यू जो है वहाँ का वो दक्कन कहलाता है, और ग्रेटेस्ट रिवर जो है वो गंगा कहलाता है। प्लस कैपिटल सिटी जो है वो न्यू दिल्ली है, और बहुत सी लैंग्वेजेस जो हैं इंडिया के अंदर बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी जो है वहाँ की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्लस उसके साथ साथ इंग्लिश जो है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अगर हम पाकिस्तान की मुस्लिम स्टेट्स के साथ जायजा लें कि कौन कौन सी स्टेट्स के साथ उसके ताल्लुकात हैं, तो उसमें अगर नॉर्थ एंड वेस्ट अफ्रीका का सिर्फ हम देखें तो उसमें मोरक्को है, अल्जीरिया है, तंजानिया है, नाइजर, माली और चार वगैरह ऐसी स्टेट्स हैं जिनके साथ पाकिस्तान के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इसी तरह अगर नॉर्थ ईस्ट एंड अफ्रीका को सिर्फ हम देखें तो लीबिया, इजिप्ट, सूडान, सोमालिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। सेम अगर हम मिडल ईस्ट का जायजा लेते हैं तो टर्की, यमन, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान एंड ईरान के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। प्लस अगर साउथ ईस्ट का जायजा लें तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बांग्लादेश, मलेशिया, ब्रुनाई एंड इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सेंट्रल एशिया का अगर जायजा लें तो काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड अजरबैजान के साथ भी पाकिस्तान के बीइंग अ मुस्लिम स्टेट्स बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इन तमाम ममालिक के साथ न सिर्फ जो तजारती ताल्लुकात नहीं है, ट्रेड के लिहाज से सिर्फ एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं की जाती जस्ट, बल्कि सोशली और जहाँ पॉलिटिकली बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, वो सोशली भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। Our next topic is interdependence. Interdependence is people, animals, organizations or things depending on each another. यानी सोसाइटी के अंदर अगर हमें रहना है तो हम अकेले नहीं रह सकते, हमें अपनी ज़रूरतों को या अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। The relationship between a manager and his employees is an example of interdependence. यानी एक मैनेजर की एग्जांपल ले लें और एक किसी ऑफिस की एग्जांपल ले लें, तो वहाँ पे मैनेजर जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और एम्प्लॉयज जो होती है अपने मैनेजर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, और सब मिलकर एक टीम वर्क कर रहे होते हैं अपनी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। इसी तरह दो स्टेट्स जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। इसी तरह दो जानवर जो हैं एक दूसरे पे डिपेंड कर सकते हैं खुराक के लिए।
Dear students, today your home task is question number 1 to 8. Question number 1 is between which lines of latitude and longitude is Pakistan situated? Answer is Pakistan lies between 24 degree and 37 degree north and 61 degree and 76 degree east. Question number 2 is name the countries that share a border with Pakistan. Answer is Iran, Afghanistan, China and India share their borders with Pakistan. Question number 3 is which country shares the longest border with Pakistan? Afghanistan shares the longest border, 2200 km with Pakistan. Question number 4 is which mountain range forms the border between China and Pakistan? The Karakoram range forms the border between the China and Pakistan. Question number 5, where is the Gobi Desert situated? It is situated in the China and Mongolia. Question number 6 is which of Pakistan's neighboring countries has no coastline? Afghanistan doesn't have a coastline. Question number 7 is what is meant by the interdependence? Answer is interdependence is the reliance or dependence of two or more individuals or countries on each other. यानी एक दूसरे के ऊपर जब हम डिपेंड करते हैं तो ये कहलाता है interdependence. Question number 8 is why is there a need for interdependence? हमें क्यों जरूरत पड़ती है एक दूसरे पर डिपेंड करने की? तो answer is countries depend on one another for different reasons. The requirement and needs in the form of goods and services of one country can be met by purchasing these from another country. यानी कोई भी इंसान कोई भी स्टेट जो है अकेली नहीं रह सकती, उसे एक दूसरे के लिए जो है एक दूसरे की जरूरत पड़ती है. हमें गुड्स और सर्विसेज हासिल करने के लिए एक दूसरे की जो है मदद लेनी पड़ती है. Okay, dear students, let's start our bookwork page. From page number 75, part A, complete this fact sheet about the neighboring countries of Pakistan. First flag is Chinese flag. So हमें चाइना के बारे में जो है डिटेल्स जो है वो लिखनी है. जैसे फर्स्ट पूछा गया है कंट्री कौन सी है, फ्लैग को देखते हुए हमें बताना है कि किस कंट्री का फ्लैग है. तो चाइना का ये फ्लैग है, यानी हम लिखेंगे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. कैपिटल उसका बीजिंग है. नेक्स्ट वन इज उसकी जो लैंग्वेज है वो मैंडेरियन है, और उसके अलावा उसकी जो पॉपुलेशन है 1.38 बिलियन है. वहाँ जो क्रॉप्स जो हैं ग्रोन की जाती हैं या बनाई जाती हैं जो चीज़ें, वो राइस, कॉटन, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से. प्लस वहाँ के फेमस लीडर जो हैं वो माओ हैं, चू एन लई हैं, डेंग जियाओपिंग जो हैं वहाँ के फेमस लीडर्स हैं. Next one is Iranian flag, yani country, Islamic Republic of Iran, capital Tehran, language Farsi, population 81.16 million people, thing grown or made here, oil, gas, minerals, carpets, etc. And famous leaders Raza Pahlavi, Ayatollah, President Khatmai, President Ahmadinejad. Next flag is Indian flag, name country India, capital Delhi, language Hindi, population 1.34 billion people, things grown or made here, rice, cotton, silk, machinery, computer, software, etc. Famous leader Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, etc. Okay, dear students, next part is B part. Make a poster to show your understanding of interdependence. आपकी हेल्प के लिए आपको एक जो पोस्टर है वो दिया गया है. इसके अकॉर्डिंग जो आपको इंटरडिपेंडेंस से समझ आया है वो आपने जो है वो उसके बारे में एक पोस्टर के अंदर जो है बताना है कि आपको क्या क्या चीजें लगता है कि इंटरडिपेंडेंस का हिस्सा है, या फिर इंटरडिपेंडेंस जो है वो क्या चीज है. Guidelines for parents. Dear parents, all the main points discussed in the lesson. Make sure students listen the lesson carefully.
Question number 1 to 8 discussed in the lesson. So ask your child to do 1 to 8 all questions on notebook. Make sure that spelling should be correct while writing answer. Make sure your child learn the home task on daily basis. Dear students, I hope you understood all the topics and questions very well. Complete your home task on time. Thank you.